This call is now being recorded. Yes. So very good evening once again, everyone. So as you know, we are doing our chapter 5, decimal fractions. Decimal fractions. This is the fifth chapter, decimal fraction. Here today I want to recapitulate the previous topics that we have already done. Clear? So, dear students, let's see what is this? This is a decimal fraction now. Decimal fraction number is given to you 45 decimal point 890. Clear students? 45 decimal point 890. Now what you will do? You write in chat box, write the whole number, write the whole number of this decimal fraction. Write in chat box whole number. Very good. Whole number in chat box. All of you write down in chat box. Yes, very good. Shabash. All of you try to write. Good. So, in this decimal fraction, whole number part is 45. And now write down the decimal part. Write down decimal part in chat box. Write decimal part in chat box. You know, in decimal fraction, two parts na? One is whole number and second one is decimal part. So write your answer, decimal part in chat box. Yes, very good. Shabash. Good. 890. You know ना कि जो whole number है, we will pronounce whole. कंप्लीट नंबर आपने स्पीक करना होता है 45. अगर समथिंग इज लाइक 145 और 2145 तो वी विल प्रोनाउंस फुल, बट डेसिमल पार्ट वी विल प्रोनाउंस ओनली single digit, like here 890. So let's compare your answer. Whole number part is 45 and decimal part is 890. Clear? Okay. Now move to next slide. Here, multiplication of a decimal by 10, 100, 1000, etc. You know, multiplication as we have done up to exercise 5.5 now, कि whenever you do multiplication of decimal number, first of all, what's the method? You just do simple multiplication without any decimal point. ऐसे किया था ना कि just simple multiplication. After that, whenever you find the product, then you will place the decimal point. कैसे count करना है decimal के लिए? Multiplication, shift decimal point to the right as there are zeros in the multiplier. You know what is multiplier? In here, multiplier is 10, 100, 1000. Clear? तो क्या है इसमें? Here I am taking one example. 78 decimal point 98. You have to multiply by 10. Clear? So what's the method? आपने यहाँ पे decimal point को shift करना है. So whenever the multiplication concept, तो decimal will shift always right hand side. You know this thing ना कि whenever the concept of multiplication, then decimal point shift to the right. Shift to the right. और right में कितना shift होना है? As there are zeros in the multiplier. कि multiplier में कितनी zero है? Like here in this example, 10. How many zero in 10? Only 1. तो decimal point one place shift हो जाएगा. किस side shift होगा? Right side. So see here 78 decimal 98 है. तो decimal अब पहले 9 से पहले था, लेकिन वो shift हो गया 1 digit, क्योंकि 10 है ना, 10 की 1 0 है, तो decimal shift हो गया 1 digit.
तो अब वो कहाँ चला गया? 9 के बाद. नाउ द नंबर इज 789.8. डिफरेंस क्लियर हुआ कि मैम ने यहाँ पे ये नंबर होल नंबर पार्ट तो वी विल स्पीक फुल ना कि 789 और डेसिमल पार्ट सिंपल. क्लियर? So this is the concept of multiplication of decimal. Now division of a decimal. Division of a decimal by 10, 100, 1000. So what's the first of all? You must know the difference between multiplication or division concept. Clear? In multiplication, decimal point shift to the right hand side, or in division, decimal point shift to the left hand side. Clear? This thing is clear to everyone कि जो आपका मल्टीप्लीकेशन है उसमें राइट साइड को डेसिमल ने शिफ्ट होना है, और जो डिवीजन का कॉन्सेप्ट है वहां पे लेफ्ट हैंड साइड को शिफ्ट होना है. सी हियर, शिफ्ट डेसिमल पॉइंट टू द लेफ्ट एज देयर आर zeros in the divisor. You know divisor. अब यहाँ पे डिवाइजर क्या है? 10, 100, 1000 इज द डिवाइजर ना. सो आपने चेक करना है कि डिवाइजर में 1 के साथ कितनी जीरो है. ठीक है, अगर 1 के साथ 1 जीरो है इट मीन वो 10 है. तो डेसिमल पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड 1 डिजिट क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा. क्लियर? I will explain this concept with the help of example. So here I am taking one example. Number is 45. Beta, listen this question carefully. 45 decimal point 890. You have to divide this number by 10. 10 से करना है इसको. Clear? तो see here, two sides are there ना. एक तो है राइट हैंड साइड, वो है डेसिमल के बाद वाली, वो कौन सी है? 890. और लेफ्ट हैंड साइड वाली जो साइड है वो है 45. तो डिवाइड में क्या है? डेसिमल ने शिफ्ट होना है लेफ्ट हैंड साइड. तो कितने प्लेस? ओनली 1. क्यों? क्योंकि 10 में कितनी जीरो है? ओनली 1. तो द नंबर इज, अब पहले वो जो डेसिमल है 8 से पहले है, वो डेसिमल पॉइंट शिफ्ट होके 5 से पहले चला गया. उसने एक डिजिट क्रॉस कर लिया ना, 5 वाला डिजिट लेफ्ट हैंड साइड उसने क्रॉस कर लिया. तो नंबर अब क्या है? 4.5890. क्लियर? नाउ सी नेक्स्ट एग्जांपल. 45 decimal 890 divide by 100. 100. Now how many zeros in 100? 2. So how many decimal place shift? Up to 2 place. Count left hand side. 5 और 4. 5 and 4. 2 digit shift हो गया. तो वो कहाँ पे पहुंच गया? डेसिमल 4 से पहले पहुंच गया. 2 digit उसने क्रॉस कर लिए. और वो भी किस साइड? राइट इन चैट बॉक्स की डिवीजन में डेसिमल किस साइड शिफ्ट हो रहा है? राइट इन चैट बॉक्स. Left, very good, shabash. It means you all are listening carefully. Very good, yes. Left hand side shift हो रहा है. Good. तो 0 decimal 45890. Clear? One more example. 45 decimal 890 divide by 1000. So here, what's the method? First of all, we will count the number of zero in 1000. So how many zero? How many zero in 1000? 3. Shabash, very good. Chat box में आ रहा है आंसर. शाबाश, good, very good. Active participation is required बेटे. तो 1000 में 3 जीरो है, तो डेसिमल प्लेस लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा. कितने? 3 प्लेसेस. ओके, 3 प्लेस शिफ्ट होना है, बट वी हैव ओनली 2 डिजिट्स. लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास तो 2 ही डिजिट है, एक 5 है और एक 4 है. तो क्या करेंगे? वी में प्रीफिक्स 0, तो हम क्या लगा देंगे? 4 के आगे 0 लगा के उसको
3 डिजिट का नंबर बना देंगे। शाबाश, गुड। आई एम लुकिंग चैट बॉक्स ऑल्सो साइड बाय साइड, गुड। तो अब नंबर क्या बन गया? 0.04589 So I hope division and multiplication concept is clear to everyone. Clear? I am repeating once again because जो next activity है उसी में इन दोनों से related ही I will ask the questions. Okay? So you must be know the difference of multiplication and division. Clear? तो division में left hand side decimal ने shift होना है और multiply में right hand side. Clear? Okay. Excuse me. Now this is the time of story time. Excuse Okay? Write in chat box. If you have any query, write in chat box, bete. Excuse me. So here I'm telling you one story of 3 friends. Okay? Very interesting story. Listen carefully. बहुत enjoy करोगे आप इस story को. Excuse me, ma'am. Yes, bete ji. Yes, I'm telling you to write in chat box if you have any doubt. Write in chat box, beta ji. Okay. No doubt. Okay. So this is the scene of classroom ना? है ना classroom? मैम है तो students भी हैं. Okay. So this is the story of 3 friends. Story of 3 friends. Decimal, multiply and divide. ये तीनों friends हैं. एक का नेम है डेसिमल, मल्टीप्लाई और डिवाइड. ठीक है, ये तीनों क्या है? फ्रेंड है. ओके, तो क्या हुआ? डेसिमल जो है ना उन तीनों में से, डेसिमल इज अ वेरी नॉटी स्टूडेंट. हर क्लास में 1-2 स्टूडेंट्स नॉटी होते हैं ना. तो जो उनमें से पूरी क्लास में से जो डेसिमल है वो बहुत ही नॉटी स्टूडेंट है. ठीक है. एवरी टाइम he sat with his 2 friends digit 4 and digit 7. See here students, जो digit 4 है ना वो मल्टीप्लाई का नेम है 4. आपको मैं फिर से बता रही हूं कि ये आपको क्योंकि आगे जो क्वेश्चन करने हैं ना इसी से रिलेटेड है, तो स्टोरी को ध्यान से सुनना, इसी में से क्वेश्चन आई विल पुट. ओके, तो जो 4 है ना वो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का नेम है 4. और जो उसका फ्रेंड है डिवाइड ना उसका नेम है 7. तो एक डेसिमल हो गया, एक 4 है, एक 7 है. क्लियर? ये 3 फ्रेंड्स हैं. वन डे अ टीचर फिक्स्ड हिज सीट अवे फ्रॉम हिज फ्रेंड्स. एक दिन टीचर ने क्या किया, जो नॉटी था ना डेसिमल, तो उसने कहा मैं आपकी सीट ही फिक्स कर देती हूँ, आप अपने फ्रेंड्स से के साथ नहीं बैठोगे. ठीक है. बिसाइड द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय हिज टीचर he used to change his seat daily. बट वो क्या था, जो डेसिमल वो बड़ा ही नॉटी था. टीचर ने इंस्ट्रक्शंस भी दी, लेकिन वो क्या है, वो तो हर रोज आके मॉर्निंग में जल्दी अपनी सीट चेंज करके अपने फ्रेंड्स के पास चला जाता था. ठीक है. करते हो ना आप भी समटाइम ऐसे कि मैम सीट फिक्स करते हैं, लेकिन आप क्या करते हो, आप सीट चेंज कर लेते हो ना समटाइम्स. फिर मॉनिटर कंप्लेंट करते हैं कि मैम ये इसने चेंज कर ली है सीट. या Ma'am, you are muted. Ma'am, you are muted. No, beta, keep Yes, your ma'am, mic. No, बच्चे. Neetu ma'am, unmute yourself. Ma'am, you are muted. Beta, you unmute your microphones. I will tell Neetu ma'am. Ma'am, you are muted. Mute your okay. microphones. Now my voice is audible. Excuse me, ma'am. Yes ma'am. I request all the children, if any technical problem will be there, I will inform Neetu Virdi ma'am. Please don't unmute your microphones. You have to keep your microphones on mute. Okay, thank you. Okay. Now my voice is audible. Yes, ma'am. ओके. तो बेटा इसमें क्या है, इस स्टोरी से रिलेटेड
You have to write the answer in chat box. I'll give you few questions. Okay, I'll give you few questions related with this story. Okay, before giving you questions, here see this picture. And you must draw this picture in notebook. This is very helpful for you to find the difference between multiply and divide. So draw this picture in notebook also. Here, what this picture is showing, क्या शो हो रहा है इसमें कि जो डेसिमल पॉइंट है वो जो है राइट हैंड साइड एक एरो है. ओके, तो वो किस साइड डेसिमल जा रहा है? मल्टीप्लाई की साइड. और नीचे वाला जो है डेसिमल वो जो है लेफ्ट हैंड साइड की ओर मूव हो रहा है. इट मीन वो डिवाइड के पास मूव हो रहा है. तो स्टोरी के अकॉर्डिंग भी जो हमने क्वेश्चंस के आंसर करने हैं वो भी यही है कि डेसिमल पॉइंट ने मूव होना है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड. क्लियर? नाउ दिस डायग्राम इज क्लियर टू एवरीवन. This will be very helpful for you. Okay, now let's start. Yes, first of all you just see only the number that is given on the top of the slide in yellow color. 712 decimal 349. Only see this number and note down in your notebook. Visible beta. Okay ma'am, okay. Beta, try to have some patience, bache. For few seconds, try to have some patience. Okay, so beta write down this number in notebook. 712 decimal 349. Okay, now अब डेसिमल ने क्या किया अकॉर्डिंग टू द स्टोरी कि मंडे वाले दिन उसने क्या किया, सीट चेंज कर ली मॉर्निंग में ही. कैसे सीट चेंज की? सी हियर, मैम ने डेसिमल को सेंटर में बिठाया. जो नॉटी स्टूडेंट होते हैं, जैसे अभी भी किसी ने कुछ शरारत की कि मैम को म्यूट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, अनम्यूट हो रहे हैं, तो जो ऐसे स्टूडेंट हैं टीचर क्या करता है? टीचर कहता है ना कि मेरे पास ही बैठो, चलो आज मैं आपकी सीट फिक्स करती हूँ यहाँ पे. लेकिन क्या हुआ, डेसिमल ने आके अपनी सीट मंडे चेंज कर ली. सी हियर, अब जो डेसिमल है वो 3 से पहले है, लेकिन मंडे वाली रीडिंग चेक करो. मंडे वाली रीडिंग, मंडे क्या हुआ, नोटबुक पे नोट डाउन करो बेटा जी. 7123 डेसिमल पॉइंट 49, डेसिमल पॉइंट 49 है. इट मीन आपने ये बताना है, पहले नोटबुक पे कर लो कैलकुलेट, अगर आपको डायरेक्ट आ रहा है तो डायरेक्ट, कि डेसिमल किस साइड शिफ्ट हुआ है. वो डेसिमल 4 वाली साइड जा रहा है. तो राइट इन चैट बॉक्स कि डेसिमल मंडे किस साइड शिफ्ट, किसके पास जा रहा है? मल्टीप्लाई के पास और डिवाइड के पास. राइट नहीं, आप मुझे ये बताओगे कि मल्टीप्लाई और डिवाइड. अगर आपको याद है कि मैम ने कहा था मल्टीप्लाई 4 है और डिवाइड 7 है, उसके 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं. वेरी गुड, वेरी गुड, ऑल ऑफ यू पार्टिसिपेट. शाबाश. ओके, चलो ये तो क्लियर हो गया कि वो राइट हैंड साइड शिफ्ट हुआ है, मल्टीप्लाई के पास गया. बट अब ये बताओ उसने कितनी सीट छोड़ी है, डेसिमल कितने प्लेस शिफ्ट हुआ है? वेरी गुड, शाबाश, 1. ओके, 1. इट मीन मल्टीप्लाई वो किससे हुआ है? मल्टीप्लाई बाय क्या है वो? वेरी गुड. अंजू चोपड़ा के नेम से मानवी, यस यस, शाबाश, 10 के साथ. वेरी गुड. इट मीन आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि उस दिन मंडे वाले दिन डेसिमल शिफ्ट हुआ है राइट हैंड साइड, मल्टीप्लाई बाय 10. नाउ मूव टू द नेक्स्ट ट्यूसडे. ट्यूसडे वाले दिन सी हियर, राइट डाउन दिस नंबर इन नोटबुक. 71 डेसिमल 2349. 2349. वेरी गुड. मेरे आंसर क्वेश्चन करने से पहले ही आंसर दे रहे हैं कि वो लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हुआ है. लेफ्ट हैंड साइड वो किसके पास जाने की कोशिश कर रहा है? ऑल ऑफ यू राइट डाउन इन चैट बॉक्स. वेरी गुड. 7 कौन है?
डिवाइड है, वेरी गुड, शाबाश। 7 है डिवाइड। ओके, तो वो कितनी सीट शिफ्ट हुआ है? पहले वो था, आपने जब भी रीडिंग चेक करनी है ना, जो येलो कलर में नंबर है ना एक्चुअल वाला, जहां मैम ने उसकी सीट फिक्स की है, वहां से चेक करना है। 2, तो क्या वो 10 हुआ, बाय 100 है या बाय 1000 है? काउंट, पहले वो 2 से पहले था, ठीक है, 2 के बाद था, सॉरी। तो अब वो शिफ्ट हो गया है, 1 के आगे चला गया, 2 डिजिट, इट मीन डिवाइड बाय। वेरी गुड, वेरी गुड, आई एम वेटिंग, ऑल ऑफ यू पार्टिसिपेट, हरी अप। 10 नहीं है बेटा जी, 10 नहीं है, क्योंकि वो 1 डिजिट शिफ्ट हुआ है। यस, ट्यूसडे वाले दिन वो 2 से पहले, अब 2 के पहले चला गया, तो 1 डिजिट शिफ्ट हो गया। 100 कैसे आ रहा है नंबर? वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्यूसडे। ट्यूसडे, ट्यूसडे को 10 है, 1 डिजिट शिफ्ट हुआ है ओनली। ओके, यस। ओके, नाउ वेंसडे को क्या हुआ, वो जो डेसिमल है फिर से शिफ्ट हो गया, अब वो लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हुआ है। यस, डिवाइड, गुरनाज लिख रही है डिवाइड, यस, वेरी गुड। चिंतन मल्टीप्लाई नहीं है बेटा, मल्टीप्लाई में तो वो उसने राइट हैंड साइड शिफ्ट होना था, तो ये लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हुआ है वेंसडे को भी। क्लियर? तो लेफ्ट हैंड साइड है डिवाइड की। ओके, तो काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स, काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स। यस, ओके, 2। ओके, तो 10 हुआ कि 100 या 1000? राइट डाउन करेक्ट आंसर, आई एम वेटिंग। यस, शाबाश, ओनली फ्यू आर पार्टिसिपेटिंग। यस, वेरी गुड, 100। स्वयं 1001 कैसे हो गया? 100। ओके, 2 और 1, 2 और 1 को क्रॉस कर लिया उसने, तो 2 डिजिट शिफ्ट हो गया। नाउ मूव टू थर्सडे। थर्सडे को थर्सडे को 712 डेसिमल 349 है, वो शिफ्ट होके 4 के बाद चला गया, 4 के बाद चला गया। सो यस, मल्टीप्लाई, वेरी गुड, शाबाश। डिवाइड कैसे हो रहा है? सी, अगर तो बेटे वो राइट हैंड साइड डेसिमल शिफ्ट हो रहा है तो वो मल्टीप्लाई है, अगर लेफ्ट हैंड साइड होएगा फिर वो होएगा डिवाइड। ओके, तो मल्टीप्लाई हुआ, तो कितने डिजिट शिफ्ट हुआ है? काउंट करो नंबर ऑफ डिजिट्स। 2, डेसिमल के बाद 3 और 4, 2 डिजिट शिफ्ट हुआ है, शाबाश, 2 डिजिट्स, वेरी गुड। तो 2 डिजिट्स क्या हो गए? बाय 10 हुआ? राइट इन चैट बॉक्स की बाय 10 हुआ? नो। ओके, यस, बाय 100, गुड, बाय 100। ओके, नाउ मूव टू द फ्राइडे। फ्राइडे को वो और पास चला गया। सी, फ्राइडे को वो बिल्कुल लास्ट सीट पे जाके बैठ गया, देखो एंड में है ना, 9 लास्ट वाला डिजिट है, तो वो ओके, यस, तो वो क्या है? मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट है। तो कितनी सीट छोड़ के लास्ट में गया है वो? डेसिमल के बाद काउंट करो नंबर ऑफ डिजिट्स, 3, 4, 9, तो हाउ मेनी डिजिट्स? 3, यस, 3, वेरी गुड। एक्चुअल में नंबर क्या हो गया है वो? 1000, यस, वेरी गुड, 1000, शाबाश, गुड। गुरनाज 100 नहीं है बेटे, काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स राइट साइड, डेसिमल के बाद है 3, 4, 9, तो 1, 2 और 3, 3 डिजिट्स हैं, तो 1 के साथ 3 0, तो वो बन जाएगा 1000, 1000। ओके, देन सैटरडे। सैटरडे को सब पहले ये बताओ वो किस साइड शिफ्ट हुआ है? साइड कौन सी शिफ्ट हुआ है सैटरडे को? राइट इन चैट बॉक्स, लेफ्ट, वेरी गुड, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हुआ है।
ओके, यस, गुड। तो लेफ्ट हैंड साइड किसकी है, मल्टीप्लाई की या डिवाइड की? राइट इन चैट बॉक्स, लेफ्ट हैंड साइड किस साइड शिफ्ट हुआ है वो? डिवाइड, वेरी गुड, डिवाइड। ओके, तो कितनी प्लेसेस छोड़ के हुआ है शिफ्ट? सबसे आगे वाली सीट पे चला गया वो, 7 से भी आगे, 7 से भी आगे है। तो क्या हो गया है? 3 डिजिट, वेरी गुड। तो 3 क्या हुआ? 100 है, 10 है या 1000 है? 1000, शाबाश। बट ओनली फ्यू आर राइटिंग। हरिये बेटे, राइट इन चैट बॉक्स। So I hope this concept is clear to everyone. Multiply and divide. Now I'm sum up this activity कि multiply में decimal place will shift to the right hand side and you have to count the number of places in the multiplier, and in division left hand side count the number of zero of the divisor. Clear? So I hope all have enjoyed this activity. और सबको अब ये कॉन्सेप्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड डेसिमल स्टोरी के साथ सबको याद रहेगा। ओके, तो दीपिका मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, you start now. Okay, okay. First of all, good evening to all of you. बच्चे, आप लोगों को जो इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं पहले आपने उसको बहुत अच्छे से सुनना है। आप इंस्ट्रक्शन डोंट अनम्यूट योरसेल्फ। आपको बार बार एक ही चीज जो है वो बोली जाती है बच्चे, डोंट अनम्यूट योरसेल्फ। आपने अच्छे से जो है इंस्ट्रक्शंस को सुनना है। आपकी एक्टिविटी बेस्ड जो है आज लर्निंग होगी, तो आपने सिर्फ चुप कर जो है पहले अच्छे से इंस्ट्रक्शंस को सुनना है और उसके बाद जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसका आंसर सिर्फ आपने चैट बॉक्स में देना है, अपने आप को अनम्यूट नहीं करना है। क्लियर? तो सबसे पहले तो आपको जो है चैप्टर भेजा गया था, चैप्टर नंबर 5th मैंने आपको भेजा था, 5th भेजा था, जिसका वेट, आई थिंक माय वॉइस इज नॉट ओके, नाउ इट इज ओके। Yes, ma'am. Yes, now okay. ओके। तो आपको चैप्टर जो है वो भेजा था, अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ा होगा तो आपने उसकी बैक एक्सरसाइज सॉल्व कर ली होगी और आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। लेकिन आपने अगर उसको अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आज आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, आज आप एक्टिविटी में इतने अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले जब भी आपको कोई वर्क भेजा जाता है बच्चे व्हाट्सएप पर, उसको आपने अच्छे से जो है वो उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए वो वर्क करना है। ठीक है, तो आज हम एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे, वो आपके जो है चैप्टर नंबर 5 से बेस्ड है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्टिविटी। ओके, Yes. दोबारा बोल रही हूँ बच्चे, आप अच्छे से पहले इंस्ट्रक्शन सुनोगे पेशेंस के साथ। ये नहीं कि आप अपने आप को अनम्यूट करके बीच में बोलो, पेशेंस के साथ आप अच्छे से इंस्ट्रक्शन सुनोगे, देन आप एक्टिविटी के आंसर्स जो हैं वो आप मुझे चैट बॉक्स में दोगे। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, पाठ में होने वाली घटनाओं को क्रम से लगाएं। आपने पहले इसको अच्छे से रीड करना है और फिर बताना है कि चैप्टर में सबसे पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था। आपने एक क्रम के साथ जो है इसको लगाना है। आप पहले इसको अच्छे से पढ़िए। आपके लिए मैं एक बार इसको पढ़ देती हूँ पॉइंट को। आपने इसको क्रम से लगाना है कि किस क्रम से जो है कहानी आगे बढ़ती है। कृष्ण अपने पिता के साथ हाथी की सवारी करता है। कृष्ण स्कूल से आते ही खाना खाकर अपना गृह कार्य करता है। कृष्ण कमरे की खिड़की पर खड़ा होकर रोजाना हाथी को देखता है। कृष्ण के पिताजी कृष्ण को हाथी के बारे में विशेष जानकारी देते हैं। अब आप मेरे को बताइए कि
कौन से क्रम से जो है वो स्टोरी आगे बढ़ती है। अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा तो इट इज वेरी इजी फॉर यू। और मेरे को जो है रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, आस्तिक का आ चुका है, साधिका का आ गया है, अंजू चोपड़ा के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया है, काफी बच्चे जो हैं वो रिस्पॉन्सेज दे रहे हैं। और 2 3 4 1 मोस्टली बच्चे जो हैं आंसर दे रहे हैं 2 3 4 1। सीक्वेंस जो है आपने बताना है कि घटनाओं का सीक्वेंस क्या है। तो बच्चे आंसर दे रहे हैं 2 3 4 1 यस। और बच्चे इट इज इम्पोर्टेंट कि आप सब जो है पार्टिसिपेट करो। इट्स ओके अगर आपका आंसर जो है गलत हो जाता है, इट इज ओके, बट आपको पार्टिसिपेट जरूर करना है। अगर आप पार्टिसिपेट करोगे तो कुछ सीखोगे भी, ठीक है ना। गलतियां हम तभी करते हैं जब हम कुछ करते हैं, जब हम कुछ करेंगे ही नहीं तो गलतियां कहाँ से होंगी। अगर आप कुछ ट्राई करोगे तो वो पक्का जो है वो मतलब कि कभी ना कभी सही होगा। तो आपने ट्राई जरूर करना है। तो मेरे पास जो है काफी रिस्पॉन्सेज आ चुके हैं। 2 3 4 1 जो है बच्चे लिख रहे हैं मोस्टली। और यशु का रिस्पॉन्स आया है 4 3 2 1। ओके यशु। और उसके बाद रजनी वर्मा का भी आया है 2 3 4 1। ओके वेरी गुड। तो बच्चे सबसे पहले स्टोरी स्टार्ट होती है कि क्रिस स्कूल से आते ही खाना खाकर अपना गृह कार्य करता था। गृह कार्य का मतलब होता है होमवर्क। तो स्टोरी जो है फर्स्ट लाइन यहाँ से ही स्टार्ट होती है। बताया जाता है कि जो क्रिश है वो बहुत ही अच्छा बच्चा है। वो घर आते ही अपना गृह कार्य, अपना होमवर्क कंप्लीट करता है और उसके बाद हाथी को देखने के लिए अपने कमरे की खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है। उसके बाद आप मेरे को बता रहे हो कि थर्ड पॉइंट जो है आना चाहिए, क्रिश कमरे की खिड़की पर खड़ा होकर रोजाना हाथी को देखता है। यस। तो सेकेंडली फिर हमें बताया जाता है कि क्रिश जो है कमरे की खिड़की के पास जाकर इसलिए खड़ा होता है क्योंकि वहां से रोज एक हाथी गुजरता है और उसको हाथी को देखना बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद बच्चे बता रहे हैं कि हमारा ऑप्शन 4 आएगा, क्रिश के पिताजी क्रिश को हाथी के बारे में विशेष जानकारी देते हैं। अब आप लोग बच्चे हो ना, आपको कोई किसी बात के बारे में नहीं पता होता है तो आपके मन में बड़ी जिज्ञासा होती है। जिज्ञासा मतलब क्यूरियोसिटी। आप क्या करते हो, अपने पेरेंट्स से जो है बार बार उसके बारे में पूछते हो जब तक आपको वो क्लियर नहीं होता है। तो वो भी यही करता है, क्रिश अपने पिताजी से हाथी के बारे में जो है वो जो है प्रश्न पूछता है और क्रिश के पिताजी क्रिश को हाथी के बारे में विशेष जानकारी देते हैं। तो लास्ट में क्या होता है, जब वो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तो हाथी वहां पर आ जाता है। तो क्रिश के पिताजी कहते हैं कि चलो आज हम हाथी की सवारी करते हैं। ओके, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सी बात हाथी के जीवन से संबंधित नहीं है। आपने चैप्टर पढ़ा है, उसमें बताया गया, बहुत सी जानकारी दी गई है हाथी के बारे में। आपने बताना है कि जो 4 पॉइंट्स लिखे गए हैं उसमें रॉन्ग कौन सा है, कौन सी जो है वो बात रॉन्ग है। फर्स्ट है, हाथी का उपयोग वनों में लकड़ी के लट्ठों की ढुलाई में किया जाता है। हाथी के जीवन का बहुत बड़ा भाग खाना खाने में ही बीत जाता है। 5वीं बार दांत टूटने पर हाथी बेबस हो जाता है। अक्सर हाथी की मृत्यु भूख के कारण होती है। इसमें से कौन सा पॉइंट इनकरेक्ट है वो आपने बताना है मेरे को। मोस्टली बच्चे आंसर दे रहे हैं मेरे को 3 3। मोस्टली बच्चों का आंसर 3 आ रहा है। दोबारा एक बार पढ़ो अच्छे से, दोबारा पढ़ो एक बार अच्छे से। और एक का मेरे को 2 भी आंसर आया है, एक बच्चे का 1 भी आंसर आया है। 2 3 स्टूडेंट्स के 1 आंसर आया है, एक बच्चे ने 4 भी लिखा है। तो ये कंफ्यूजन हमें क्यों हो रही है, क्योंकि हमने चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ा है बच्चे। तो आपने इस मीटिंग के बाद, जब भी कल संडे है, जब भी आपके पास टाइम हो, तो एक बार आप जो है अपनी बुक से उस चैप्टर को पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि अगर हम बुक से पढ़ते हैं तो एक तो हमारी रीडिंग हैबिट जो है वो डिवेल्प होती है। दूसरा, हमारी लैंग्वेज जो है वो तभी मतलब कि इम्प्रूव होती है जब हम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, जितना हम रीडिंग करेंगे, जितना हम लिखकर देखेंगे, उतनी हमारी लैंग्वेज जो है वो इम्प्रूव होगी। तो मोस्टली बच्चों के आंसर जो हैं वो 3 आ रहे हैं। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है, कुछ बच्चे 4 लिख रहे हैं, 1 लिख रहे हैं। ओके, तो बच्चे सही ऑप्शन जो है वो 3 ही है, मतलब कि जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली गलत सही आंसर है वो 3 है। 5वीं बार दांत टूटने पर हाथी बेबस हो जाता है। हाथी को 6 बार दांत जो है कुदरत देती है। भगवान उनको कितनी बार दान देते हैं? 6 बार। हम लोगों को सिर्फ 2 बार मिलते हैं। एक बार जब हम जन्म लेते हैं, उसके बाद जब हम 9-10 ईयर्स के होते हैं तो हमारे जो है दांत टूट जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि दूध के दांत टूट जाना, है ना।
तो हमारे दांत टूट जाते हैं, उसके बाद एक बार फिर दोबारा हमारे दांत आते हैं, उसके बाद दांत नहीं आते। लेकिन जो हाथी है उसको अपने जीवन में जो है 6 बार दांत मिलते हैं, उसके जीवन में जो है भगवान उसको 6 बार दांत देते हैं। और अक्सर जो है उसकी मृत्यु भी इसीलिए होती है कि 6 बार जब दांत टूट जाते हैं उसके बाद वो खाने के योग्य नहीं रहता है और भूख के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तो थर्ड पॉइंट जो था इस क्वेश्चन का वो आंसर था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज महावत का अर्थ। एक शब्द आया है हमारे पाठ में महावत, उसका आपने अर्थ बताना है क्या है। हाथी की सवारी करने वाला, हाथी दांत का काम करने वाला, हाथी को काबू में रखने वाला, हाथी पर सवार होकर लड़ने वाला। आपने सही आंसर दिया है। आस्तिक ने मेरे को आंसर दिया है। बच्चे if you have any query, बच्चे write in chat box. Don't unmute yourself, write in chat box. Deepika ma'am, please excuse me. Yes ma'am, yes ma'am. Beta Samardeep or child with ID Mohit Beri. This is the last warning. I will remove you from the class. Then you will contact Anu ma'am or the principal ma'am to enter in the class again next time. So all the students, don't mute anybody. Don't touch the screen. Sit properly, all of you. I have taken your screenshots. Thank you, ma'am. Okay ma'am, okay. यस बच्चे, डिसिप्लिन के साथ क्लास में जब आप डिसिप्लिन के साथ बैठते हो तो आपको मजा आता है और आप कुछ नई चीजें सीखते भी हो। तो यही सेम जो है आपने वर्चुअल क्लासेस में भी करना है, ठीक है। तो आपने बताना है कि महावत का सही अर्थ क्या होता है। हाथी की सवारी करने वाला, हाथी दांत का काम करने वाला, हाथी को काबू में रखने वाला, हाथी पर सवार होकर लड़ने वाला। और मोस्टली मेरे को आंसर जो है वो 3 आ रहे हैं। कुछ बच्चों ने 1 भी लिखा था स्टार्टिंग में। यस, तो सही आंसर जो है वो 3 है। हाथी को काबू में रखने वाले इंसान को महावत कहते हैं। किसी भी जानवर को पालतू बनाने के लिए उस पर काबू पाने की जरूरत होती है, तो उसको काबू पाने वाले इंसान को जो है वो महावत कहा जाता है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट इज जीवन काल का अर्थ। जीवन काल एक शब्द आया है, उसका आपने अर्थ बताना है। बचपन का समय, विद्यार्थी जीवन का समय, पूरे जीवन का समय, हाथी के जीवन का समय। आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास। कुछ बच्चे 2 लिख रहे हैं, 1 लिख रहे हैं, 3 लिख रहे हैं, फिर 2 लिख रहे हैं। काफी बच्चों के आंसर 3 आ रहे हैं। बच्चे सभी बच्चों के आंसर मेरे पास आने चाहिए। सिर्फ आपको क्या एक नंबर ही तो लिखना है वहां पे, तो आप सभी के आंसर जो हैं वो आने चाहिए मेरे पास। ओके, मोस्टली बच्चे 3 लिख रहे हैं और कुछ बच्चे 2 लिख रहे हैं। एक बच्चे ने 1 भी लिखा है। यस, द करेक्ट आंसर इज बच्चे पूरे जीवन का समय। जितना भी जीवन है, चाहे वो किसी इंसान का हो, चाहे किसी जानवर का हो, चाहे पक्षी का हो, वो जितना लंबी उम्र जीता है उसको जीवन काल कहा जाता है। ठीक है ना? जितना भी वो जीता है उसको जीवन काल कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाथी का वजन कितना होता है? हाथी का वजन कितना होता है? 1 से 2 टन, 2 से 3 टन, 4 से 5 टन, 8 से 10 टन। दोबारा ऑप्शन बोल रही हूं। 1 से 2 टन, 2 से 3 टन, 4 से 5 टन, 8 से 10 टन। बच्चे आंसर दे रहे हैं, कई बच्चे 2 दे रहे हैं, कई बच्चे 3 दे रहे हैं और कुछ बच्चों का 1 भी आ रहा है। ओके, दक्षिता के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया उनका 1 आया है और मोस्टली बच्चे 2 आंसर दे रहे हैं। नैतिक का भी 2 आया। वेरी गुड, वेरी गुड। यस, द करेक्ट आंसर इज 2। उसका जो भार है वो 2 से 3 टन तक होता है। 1 टन में 1000 किलोग्राम होते हैं, तो उसका भार कितना है? 2 से 3 टन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट बच्चे आपने पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। वहां पर मैंने अंकों में जो है गिनती लिखी है। आपने पहले तो वो पहचानना है कि वो अंक कौन सा है और उसको शब्दों में कैसे लिखा जाएगा, वो आपने देखना है।
बच्चे इतने फास्ट हैं, अभी मैं क्वेश्चन क्लियर कर रही होती हूँ, फटाफट आंसर शुरू हो जाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। मेरे पास आ रहे हैं आंसर्स, आ रहे हैं 4 4 4। बच्चे एक बार ध्यान से देखो, कई बच्चे 1 भी लिख रहे हैं। Mohit Beri, beta switch on your camera. 4 जो है Mohit Beri, switch on the video, beta. Everybody switch on the video. बच्चे 4 आंसर दे रहे हैं और कुछ बच्चे 1 आंसर दे रहे हैं। ओके, तो सही आंसर जो है वो है 4। सही आंसर है 4, जो लिखा हुआ है 70। ठीक है, अगर आप ऊपर वाला देखोगे तो वो 70 बन जाता है। ठीक है, तो ये जो सही आंसर था वो था 70। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब फिर आपको दोबारा अंक को देखना है और पहचानना है कि इसको शब्दों में कैसे लिखा जाएगा। पहले आप अंक को पहचानिए और उसके बाद आप शब्द बताइए कि इसको शब्द में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे। आंसर मेरे पास आ रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी बच्चे आंसर दे रहे हैं। वेरी गुड, इसका मतलब आप लोग सभी जो है घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। वेरी गुड, वेरी गुड। आप लोगों के एफर्ट्स देख के जो है बहुत अच्छा लगता है। वेरी नाइस। मोस्टली बच्चे जो है आंसर दे रहे हैं और मोस्टली सभी बच्चों का आंसर, इसमें कोई भी किसी को कंफ्यूजन नहीं लग रही है मेरे को। मोस्टली सभी बच्चों का आंसर जो है वो 2 है। और किसी ने हिंदी में भी जो लिखा है, वेरी गुड। हिंदी कीबोर्ड जो है चलाना सीख गए हो ना? यस, तो सही आंसर है नंबर 2, 66। ठीक है, आपको अगर कभी भी कोई भी डाउट हो ना बच्चे, तो उसको ध्यान से जो है वर्ड्स को, सारे वर्ड्स को पढ़कर देख लिया करो। शुद्ध करो में अगर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, सबको अच्छे से पढ़कर देख लिया करो, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शुद्ध शब्द चुनो। चुने, आपने के सामने जो है कुछ शब्द लिखे गए हैं और ये आपकी बैक एक्सरसाइज में से हैं। अगर आपने खुद बैक एक्सरसाइज की, आज तो मैंने आपको सॉल्व बैक एक्सरसाइज भी भेज दी थी। अगर आपने खुद जो है बैक एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश की है तो आपको पता होगा कि इसका सही आंसर क्या है। बच्चे 1 और 4 लिख रहे हैं, मोस्टली 1 आंसर आ रहा है और कुछ बच्चे 4 लिख रहे हैं। 1 4 1 4। ओके, मोस्टली बच्चे 1 लिख रहे हैं और कुछ बच्चे जो हैं वो, एक बच्चे ने 2 भी लिखा है और प्रीत सिंह के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया उन्होंने भी 2 लिखा है। मोस्टली बच्चे 1 आंसर कर रहे हैं एंड यस, 1 इज करेक्ट। ठीक है, तो सही आंसर जो है वो फर्स्ट ही है, किलोग्राम। जो बच्चे 4 लिख रहे हैं बच्चे, उसमें देखो ग्र में हमने आ की मात्रा नहीं डाली उसके साथ, तो वो क्या बन गया? किलोग्राम। किलोग्राम नहीं होता, क्या होता है? किलोग्राम। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चन है, आमतौर पर हाथी का स्वभाव कैसा होता है? ये क्वेश्चन भी आपके बैक एक्सरसाइज में था। शांत, उग्र, चिड़चिड़ा या नखरे वाला? शांत, उग्र, चिड़चिड़ा या नखरे वाला? बच्चे जो है आंसर दे रहे हैं 1 और एक बच्चे ने 3 लिखा है, कुछ बच्चे 3 लिख रहे हैं, एक बच्चे ने 2 भी लिखा है और यशु ने तीनों लिख दिए हैं 1 2 3 4। यस, द करेक्ट आंसर इज शांत, मतलब कि उसको गुस्सा कम आता है। शांत स्वभाव कौन सा होता है? जब गुस्सा हमें कम आता है, तो उसको गुस्सा कम आता है। लेकिन अगर उसको गुस्सा आता है तो उसमें ये भी लिखा गया है कि वो तूफान मचा देता है, मतलब कि अगर उसको गुस्सा आता है तो वो सब कुछ जो है तहस नहस कर देता है। तो वैसे उसका स्वभाव जो है वो शांत होता है, लेकिन उसको अगर गुस्सा आए तो वो बहुत ज्यादा जो है वो उग्र रूप धारण कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा शांत, नंबर 1। ओके, दिस क्वेश्चन जो है ये आपके क्वेश्चन बैक एक्सरसाइज में भी था, बट मैंने यहाँ पर वर्ड चेंज कर दिया है ताकि हम देख सकें कि आपको कितनी नॉलेज है। हम 1 विषय जो है 4th क्लास से करते आए हैं ना। 4th क्लास में जब हमने मात्राएं करनी शुरू की थी तो आपको बताया गया था कि हर जो व्यंजन है वो तभी पूर्ण होता है जब उसके साथ अ लगता है। ठीक है, क की साउंड तभी पूरी होती है जब क
प्लस अ होता है तो वो क बनता है, ठीक है ना। इसीलिए अ जो है वो स्वर में आता है लेकिन उसकी मात्रा नहीं होती, क्योंकि वह पहले ही हर व्यंजन के साथ लगा होता है। तो अब जो है आपने इसके तीनों को ध्यान से देखना है और मेरे को बताना है कि सही ऑप्शन जो है वो कौन सी है, ठीक है। यहाँ पर शब्दों को तोड़कर लिखा गया है, खिड़की शब्द है उसको मैंने तोड़कर लिखा है। आपको बताना है कि सही ऑप्शन कौन सी है। कुछ बच्चे 1 लिख रहे हैं, कुछ 4 लिख रहे हैं, कुछ 2 भी लिख रहे हैं और मोस्टली बच्चे 4 लिख रहे हैं। ध्यान से देखो बच्चे, 1 लिख रहे हैं, एक बच्चे ने 3 भी लिखा है, 4 लिखा है, यशु ने 1 लिखा है, एक बच्चे ने 4 लिखा है। इसमें आई थिंक आप लोगों को कंफ्यूजन है ना। तो बच्चे ये आप अगर आप जल्दबाजी में आंसर देने की कोशिश करोगे तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसको पहले बहुत ध्यान से जो है वो पढ़ो, ठीक है। तो खिड़की शब्द है, ख के साथ कौन सी मात्रा लगी हुई है, ई की। तो 4th ऑप्शन आपको अब ध्यान से देखो, ख के साथ मैंने ई लगाया है तो वो बन गया खी, ठीक है। और मैंने बोला है कि कोई भी व्यंजन जो है अपने आप में पूर्ण नहीं होता है, जब उसके साथ अ लगता है तो वो पूर्ण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ड़ के साथ अ लगाया है। उसके बाद क को जो है बड़ी ई की मात्रा है तो मैंने बड़ी ई लगाई है। तो हमारा सही ऑप्शन जो है वो 4 है। जो जिन बच्चों को कंफ्यूजन हो रही है फर्स्ट में, वहां पर एक ही जो है वो अल्फाबेट चेंज किया गया है, मैंने ड़ के साथ आ लगाया है तो वो क्या बन जाएगा, खिड़ाकी। खिड़ाकी नहीं होता, खिड़की होता है, ठीक है। तो इस बात को आपने बहुत ध्यान से जो है वो देखना है। तो हमारा सही जो आंसर है वो आंसर नंबर 4 है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 है। ओके, तो अब आपको जो है चैप्टर जो है भेज दिया गया है। इसके अलावा किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट है देन यू कैन आस्क इन चैट बॉक्स। आप चैट बॉक्स में जो है वो पूछ सकते हो, लेकिन आपको अपने आप को अनम्यूट नहीं करना है। नीतू मैम, देयर इज अ क्वेरी मैम, वी हैव क्लासेस व्हेन सीट इज देयर। Just a minute, ma'am. Monica ma'am, will you stop Monica Bedi ma'am? Deepika ma'am, has work finished from your side? Yes Can ma'am, you stop? yes ma'am, yes Okay, okay, ma'am. Okay, ma'am.